So hey guys, very good morning and welcome to our new YouTube channel, Learning Adda. Basically, we are discussing today about the interview questions asked in previous year. And first of all, I will tell you how was my RRB exam and how much I attempted in each section. So starting with reasoning, I attempted only 17 question, and in quant I attempted 15, and out of 15, one question I attempted wrong. So 14 right and one wrong in quant. And if we are talking about computer section, then I attempted 33 question, and I'm hoping that I will get 25 plus. That means 12.5 marks after it will reduce half. So in the next section, English, in which uh, I think English was a little bit easy as compared to other section. So I attempted 30 question in English, and I'm hoping that I will get 20 plus marks, because sometimes uh, I'm not mm, attempt right questions. So it might be that's why I'm telling you that 20 plus I'm hoping after attempting 30 question. And for me, one of the toughest section was GA, and I attempted only 13 question, and out of 13 question I attempted 7 question wrong, only 6 question right. So might be 4.25 marks I will get. And let's see what are the sectional cutoff of GA section, because it will be a game changer for this exam. But still I'm hoping positive results, so I'm preparing for interview. And today I will discuss about approx 18 to 20 questions related to RBI interview. So let's start. First question is RBI and its monetary policy. So you have to read what are the RBI, its function, and its policy, monetary policy, SLR, repo rate. All these are very important for interview purpose. And second is SGB. SGB means sovereign gold bonds. These are also very important. So you have to read in detail all these: RBI function, RBI's ombudsman scheme, and SGB yani sovereign green bond, or NPCI, RUPE, NASH, UPI, NFC. In these, uh, I think in 2 or 3 years, 2 to 3 years, UPI is in news. And we see the transaction limit. And in today's, I think in our daily life, we use UPI frequently as compared to another payment options like Paytm and other. And also Paytm is connected with UPI, so we can use Paytm, and we can use UPI on Paytm platform also. Okay. So next one is NEFT, which is very important for banking purpose. NEFT, RTGS, IMPS. So you have to read all about this, and what are the limits of RTGS, NEFT, and IMPS. Okay. So what are the changes in these, if any happen recently? So digital currency, what are the digital currency, and what uh, you can also read some extra detail about digital currencies. So next is check truncation systems, negotiable instruments. These are also very important. We have to read properly. Mobile banking, what are the mobile banking, and which type of mobile banking you are using, and why is it important, or do you recommend someone to use mobile banking? If yes, then what are the reasons behind recommending this? Positive pay, this is also a new for you, I think. Positive pay, so you have to read about positive pay, and types of bank, and types of bank accounts: kasha, current account, and a saving account. What are the limits, and how this works? So you have to read all about this kasha and saving accounts. Okay.
So NABARD is most important for RRB. I think in SBI or IBPS, basically NABARD related questions are very low, less, but in RRB PO, 80 to 90% question related to NABARD. So you have to read properly about NABARD. And SIDBI, Exim Bank, Export Import Bank, SEBI, NHB, and other questions as what are CC, DD, build, discounting, and small finance banks. What are the small finance bank? How many small finance bank in India? First small finance bank, and what are the net? Uh, I mean, if you want to open a small finance bank, what are the requirement for a small finance bank? These all are important for a small finance bank. Next one is nationalization of banking. So when nationalization of banking happened, and what are the benefits? So okay, so these all questions we will discuss now in Hindi. Basically हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आरआरबी इंटरव्यू से रिलेटेड. सो पहले मैंने अपने जो अटैम्प्ट हैं वो डिस्कस कर दिए. तो बेसिकली मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं. रीजनिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं. रीजनिंग में मैंने 17 अटैम्प्ट किए हैं, और क्वांट जो है क्वांट में मैंने 15 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से एक जो है मैंने चेक किया तो वो रॉन्ग हो गया है. और अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन यानी कंप्यूटर सेक्शन की, तो वहाँ पर मैंने अटैम्प्ट किया है 33. ओके. सो एन एम और वहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी मतलब हाफ़ करने के बाद 12.5 तक आ सकते हैं. ठीक है. और अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो वहाँ वो जो सेक्शन था वो कंपेरेटिवली ईजी लगा मुझे बाकी सेक्शन के कंपेयर में. तो वहाँ पर मैंने 30 अटैम्प्ट किए, बट क्योंकि वहाँ पर एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं हो पाता, तो वहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 प्लस जो है मार्क्स आ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जीए, जो कंपेरेटिवली मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगा. मे बी सबका अलग अलग होता है, बट मुझे जो है वो जीए सेक्शन हार्ड लगा. तो उसमें मैंने 13 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से मैंने चेक किया है तो 7 क्वेश्चन जो ऑलरेडी रॉन्ग हो चुके हैं. तो देखते हैं इसका कट ऑफ कितना जाता है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्क्स, वो अप्रॉक्स 70 to 75 कर रहा हूँ. तो चांसेस हैं, और फिर हम पॉजिटिव रहते हैं रिज़ल्ट को लेके. तो यहाँ पर मैं 18 से 19 क्वेश्चन जो है वो आरआरबी पीओ इंटरव्यू से रिलेटेड जो उसको डिस्कस करता हूँ. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आरबीआई जो है उसके फंक्शन क्या होते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और आरबीआई कमेटी जो है उसमें कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर जो है गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और कितनी जो है वो आरबीआई के अपने होते हैं मेंबर. ठीक है. और आरबीआई की जो कमेटी है वो कितने टाइम बाद आती है. अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो एसजीबी यानी कि जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, और मतलब वो कौन इशू कर सकता है, या फिर मतलब वो एक्चुअल में होते क्या है, आपको पूरा जो है वो डिटेल में पढ़ना है. और अगर हम बात करें एनपीसीआई, रुपए हो गया, नैश हो गया, यूपीआई हो गया, ये सब जो है आपके ट्रांजेक्शन्स वाले हो गए. और एक होता है एनएफएस. ठीक है. इन सब के बारे में आपको प्रॉपर रीड करना है. और नेक्स्ट हो गया आपका एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस. ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी लिमिट क्या है, और कौन कितना फास्ट है, और मतलब कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है, और ज़्यादातर जो है क्यों मतलब लोग प्रेफर करते हैं, या आरटीजीएस को करते हैं या एनईएफटी को करते हैं. ठीक है. उसके बाद आपको पढ़ना है डिजिटल करेंसी. डिजिटल करेंसी क्या है, और 3-4 सालों में मतलब डिजिटल करेंसी को लेकर इतनी न्यूज़ क्यों है, क्या हुआ है ऐसा डिजिटल करेंसी में. और हाँ, इससे रिलेटेड एक बिटकॉइन भी है, तो उसके बारे में आप भी रीड कर लेना. एक होता है चेक ट्रांकेशन, इसके अंदर ही आता है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी आपको रीड करना है. ठीक है. उसके बाद आता है मोबाइल बैंकिंग. मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, अगर करते हैं तो आई मीन किस टाइप की मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, और लोगों को अगर आप मतलब रिकमेंड करेंगे तो किस बेसिस पर करेंगे, कि क्यों इतना बेनिफिशियल है मोबाइल बैंकिंग. ठीक है. और एक होता है आपका पॉजिटिव पे, जिसको मैंने आई थिंक न्यू है आपके लिए पॉजिटिव पे, तो आप इसको सर्च कर लेना और इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना कि ये मतलब किस कंडीशन में कर सकते हैं, और क्या 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 मतलब इसके लिए रिक्वायरमेंट है या फिर क्राइटेरिया. ठीक है. टाइप्स ऑफ बैंकिंग कितने हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए आपके, आरआरबीज हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, पेटीएम पेमेंट बैंक, सब रीड करना है कितने हैं अभी इनिशियल, और उनकी जो मतलब उनको ओपन करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, और कितना एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग सेक्टर में. टाइप ऑफ बैंकिंग, कितने टाइप के बैंकिंग आई मीन बैंक अकाउंट हो सकते हैं, कासा क्या है आपका, सेविंग अकाउंट के, इसे पढ़ना आपको. मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाबार्ड.
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाबार्ड, क्योंकि 80 to 90 क्वेश्चन जो है वो नाबार्ड के आरआरबी में पूछता है। अदर बैंक की अगर हम बात करें, एसबीआई और आरआरबी, एसबीआई और अदर बैंक जो आईबीपीएस पीओ, उसमें शायद इतना नाबार्ड के बारे में नहीं पूछता, बट आरआरबी पीओ जो है उसमें सबसे ज़्यादा पूछता है। तो आपको वो जो है प्रॉपर रीड करना है, ठीक है। और आपको पढ़ना है सिडबी के बारे में, एग्जिम बैंक, सेबी, एनएचबी, ठीक है, ये ऑल इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका सीसी क्या है, डीडी क्या है, बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, ये सब आपको रीड करना है। उसके बाद बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया। और फिर कितने आरआरबीज़ हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट आरआरबी कौन सा था। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरआरबी जो है उसमें सेंट्रल का कितना शेयर है, स्टेट का कितना शेयर है, या फिर और आपका जो प्राइवेट एंटिटी है उनका कितना शेयर है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, कि बैंकिंग का जो नेशनलाइजेशन है कब हुआ। तो ये सब आपको रीड करना है एंड पॉजिटिव रहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और चांसेस है कि जो सेक्शनल कट ऑफ है, आई थिंक 5 to 6 मार्क्स जो है वो तो डिक्रीज़ होना ही है बिकॉज ऑफ सेक्शनल टाइमिंग। सो लेट्स ऑफ एंड ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।